Good morning, students. Today's COVID-19 message is wash your hands regularly with soap and water. Today's worksheet number 67, date 14/12/2020. और आज आप पढ़ेंगे वर्क एंड एनर्जी में व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी। पिछली वर्कशीट में आपने पढ़ा था डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इन नेचर। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लाइक light energy, sound energy, heat energy, solar energy, chemical energy, nuclear energy, kinetic energy, potential energy। ये सब different forms of energy हैं। इसमें the sum of kinetic energy and potential energy of a body or is called mechanical energy। Kinetic energy and potential energy is equal to मैकेनिकल एनर्जी। आज आप इसमें काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। एन ऑब्जेक्ट पजेस काइनेटिक एनर्जी व्हाइल इट मूव्स। कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब वो मूव करता है, चल रहा है, बह रहा है, तो हम कहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी है। और वो अगर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पोजीशन पे है तो इसका मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी इज ज़ीरो। सो इस तरह इसके एग्जांपल्स हैं लाइक रनिंग वाटर हो गया, मूविंग बुलेट, रोलिंग स्टोन, फ्लोइंग विंड, हवा चलती है, मूविंग क्रिकेट बॉल, फ्लोइंग विंड हो गया, मूविंग कार। ये सब एग्जांपल्स हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब आपको पता चल गया। कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, चल रही है, गति कर रही है, बह रही है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज एनर्जी possessed by an object by virtue of its motion. So kinetic energy of an object depends on two factors. Number one, mass of an object, that is m, and the velocity of an object, v. So more is the mass, more is the kinetic energy, and more is the velocity, more is the kinetic energy. ये कैसे होगा ये आप अभी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में देखेंगे। फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। Kinetic energy is equal to half mv square. Kinetic energy is directly proportional to mass and velocity. So therefore, more is the mass, more is the kinetic energy, more is the velocity, more is the kinetic energy. Now, the mathematical expression for kinetic energy. Let us consider an object of mass m. एक ऑब्जेक्ट लिया that is of mass m moving with velocity u. u velocity से मूव किया इसने and displaced to a displacement s. तो यहाँ से ये चल के ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया और डिस्प्लेसमेंट s कवर किया। Let a force F be acting on it and produces an acceleration to increase the velocity to v. जैसे कभी कभी देखा होगा हम दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं और रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट हमसे हमारा धक्का लग गया और वो ऑब्जेक्ट भी आगे की ओर बढ़ गया। एक इस तरह का क्या केस हुआ। एक है हम धीरे धीरे आराम से चल रहे हैं और एक ऑब्जेक्ट को जाके आराम से पुश किया तो उससे क्या होता है, ऑब्जेक्ट मूव कर जाती है। ये सब काइनेटिक एनर्जी के एग्जांपल्स हैं। सो लेट ए फोर्स एफ एक्टिंग ऑन इट एंड प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ए टू इंक्रीज द वेलोसिटी टू वी। सो इस ऑब्जेक्ट का वर्क डन क्या हुआ, W इंटू एफ एस। डब्ल्यू इज इक्वल टू
F into S. So from second law of motion, F is equal to ma. This is the first equation. तो F की वैल्यू ऑफ वर्क डन वाली में फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो W इज इक्वल टू MAS. And now from the third equation of motion, the third equation is V square minus U square is equal to 2AS. So the value of S is equal to V square minus U square upon 2A. So putting the value of F and S in work done equation, W is equal to Fs. W is equal to ma into V square minus U square upon 2A. So A से A कट गया. W is equal to half m V square minus U square. So work done is equal to energy. So kinetic energy is equal to half m V square. अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे है तो U is equal to 0. So work done is half mv square, and kinetic energy is also half mv square because the work done is equal to energy. Energy is ability to do work. Yes. For an object at rest, if the object is at rest, then initial velocity is 0, and kinetic energy of an object at rest is also 0. So two examples are given for kinetic energy. First is an object of mass 10 kg moving with velocity of 4 meter per second. V is equal to 4. Find out the kinetic energy. Now putting the value of m and v in this formula of kinetic energy, and we get 80 joules of energy. Next example, calculate the work to be done to increase the velocity of a car from 30 km per hour to 60 km per hour. So if this mass of the car is 1500 kg, mass m is equal to 1500 kg, u 30 km per hour, SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज़ मीटर पर सेकेंड. सो 30 इंटू 5/18, so 25/3 मीटर पर सेकेंड. 60 किलोमीटर पर आवर, 60 इंटू 5/18, 30 1 kilometer is equal to 1000 meter, and 1 hour is equal to 3600 seconds. 1 hour is equal to 60 minutes, and 1 minute is equal to 60 seconds. So this is 3600. 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यहाँ से काटा 2 5 जा 2 18 जा. इसीलिए हम किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें हम वैल्यू से 5/18 को इंटू कर देते. तो 30 इंटू 5/18 दैट इज़ 25/3 मीटर पर सेकंड. इसी तरीके से 60 किलोमीटर पर आवर, 60 इंटू 5/18 दैट इज़ 50/3 मीटर पर सेकेंड. सो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो वैल्यू पुट किया तो इतने जूल्स ऑफ एनर्जी आ गए. नेक्स्ट इज डिफाइन काइनेटिक एनर्जी, ऑल्सो राइट इट्स फॉर्मूला. डेफिनेशन क्या हो गई? एनर्जी possessed by an object by virtue of its motion, and formula is half m v square. Next question, what would be the kinetic energy of a car standing in a garage? गैराज में स्टैंड पोजीशन पे है, यानी एट रेस्ट पोजीशन. u इज इक्वल टू 0. सो काइनेटिक एनर्जी में v यू 0 डाला तो काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो 0. थर्ड क्वेश्चन, on what factors does the kinetic energy of an object depends? It depends on mass of an object and the velocity of an object. Next question.
Question 4. The kinetic energy of an object of mass m moving with velocity of 5 meter per second is 25 joules. So what will be its kinetic energy when its velocity is doubled? तो इसके लिए एक सॉल्व करके दिखाते हैं. Question 4. Question number 4. कितना दिया है? मास है, v है, वेलोसिटी कितना दिया था? 5 मीटर पर सेकेंड, एंड काइनेटिक एनर्जी इज 25 जूल्स गिवन. तो इस फॉर्मूले में डाल करके हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं. हाफ mv², दैट इज 25 इज इक्वल टू हाफ, m की वैल्यू दी नहीं है, m रखा, इंटू v². v कितना है? 5. तो 5 इंटू 5, दैट इज 25. m इज इक्वल टू 25 इंटू 2, ये 2 इधर चला गया, इंटू हो गया, अपॉन 5 इंटू 5 25, दैट इज ये कट गया, कितना आ गया? 2. तो मास कितना हो गया फर्स्ट केस में? 2 kg. अब हमें बोला है कि वेलोसिटी को डबल कर दे रहे हैं. वेलोसिटी कितनी थी हमारे पास? 5 मीटर पर सेकंड थी पहले. अब बोला है वेलोसिटी को डबल कर देना. डबल कर देना तो 2 इंटू कर दिया, इसमें 2 इंटू कर दिया. अब हमें मास ऊपर से मिल गया, कितना है? 2 kg. अब हम काइनेटिक एनर्जी इसमें निकाल सकते हैं. फॉर्मूला वही है, हाफ mv². इसमें वैल्यू पुट करेंगे, हाफ इंटू m इज़ 2 kg इंटू v इज़, ये कितना होगा? डबल किया तो 10 मीटर पर सेकेंड. तो v², तो 10 इंटू 10, 2 से 2 कट गया. सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 10 10 जा 100 जूल्स. क्लियर हो गया आपको ये? नेक्स्ट, अब आपको ये वीडियो समझ में आई तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे.